ओके, यस, हाँ, सो मेरा पेंडिंग है हाँ, रोल नंबर 303। 303. Okay, yeah. So next student is ready with the next question. Okay, so now we'll see some MCQs on your second unit. Okay, okay. So now your second unit is application of partial differentiation, where our first application is Jacobian. Okay, so here you can see this u is a function of x and y, v is a function of x and y. So which form is given? 303, explicit or implicit? 303, which form is given? Is it Explicit form. Yes, so this is your explicit form, and for explicit form, what is the formula for Jacobian? W by x हाँ डिटर्मिनेंट तो समझो। हाँ, so determinant, W by x then uy हाँ, vx vy Vx and Vy. Okay, so here if you calculate this, u with respect to x, 2x हाँ, ठीक है, लिख लेता हूँ, हाँ, u with respect to x is 2x, 2 with respect to y is -2, minus 2y correct? Then v with 2y respect to x is 2y and 2x. and 2x. So what is this determinant? 4 bracket x square plus y square. 4 in bracket x square plus y square. ठीक है, okay. Yes sir. Now who is next? 30, मेरा बाकी है 304 का हुआ है. सर 301 also मेरा भी रह गया था 301 1% बाकी है। So we'll start from a sequence now. 301. Yeah. ओके सर So just 1 minute. I will not do this. मैं कुछ easy questions skip करने वाला हूँ. Yeah. Yeah. You tell me this. Example number 4. This is 301. So हाँ, बोलो. So x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, and we have to calculate the Jacobian of what? R theta with respect to x, y. Yeah. Bolo. First tell me how you calculate this. Jacobian of r. So, हाँ. Yes. so we will take Jacobian of equals to हाँ. hello हाँ हाँ बोलो बोलो. so del of r theta हाँ. with respect r theta Del of r theta with respect to x, y is equal to xy हाँ, is equal to. Can you calculate this directly- directly? Yes. ये आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो क्या यहाँ पे? Is it possible here to calculate Jacobian of r theta with respect to x, y directly from this explicit form जो ऊपर एक्सप्लेन किया था? ये इस डेफिनेशन से ये डायरेक्टली होगा क्या? r theta का with respect to x, y? so do we have to convert it in करेक्ट. सो डायरेक्ट वैसे तो पॉसिबल नहीं है, ये आपका आंसर है. करेक्ट. डायरेक्टली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना Jacobian. Am I correct? yes sir we have to convert it by squaring and adding हाँ, क्योंकि इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए? r मस्ट बी फंक्शन ऑफ x एंड y एंड थीटा मस्ट बी फंक्शन ऑफ x एंड y अगर आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. बट हियर वी हैव गिवन द रिवर्स पार्ट, वी हैव गिवन x y इन टर्म्स ऑफ r थीटा. ओके, टू कैलकुलेट दिस, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको r थीटा इन टर्म्स ऑफ x एंड y चाहिए, बट आपको रिवर्स पार्ट गिवन है, आपको x एंड y इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा गिवन है. तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो? हाउ यू राइट दिस वैल्यू r थीटा विद रिस्पेक्ट टू x y? आप कैसे लिखते हो इसको? हाँ, so we can square and add so that okay, that approach is correct. It is not a wrong approach. बट मेरा क्या कहना है कि इसमें ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत नहीं है उसकी. कैन वी राइट दिस? ये आप मुझे बोलो करेक्ट है कि नहीं. अगर ये कैलकुलेट करना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? okay so directly yes sir we can write it हाँ, तो जो गिवन है वो कैलकुलेट करके उसको ही रिवर्स करो, सो दैट विल गेट द Jacobian of r theta with respect to x, y. ओके, yes sir sir. विल डू दिस. कर लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे जगह वहाँ पे लिख लेता हूँ. नाउ
1 upon. हाँ एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा बोल. So should I tell directly or? Yes, yes, tell me direct derivative x. So it will be x theta. Just right here, then we write here. हाँ, बोलो. so 1 upon indeterminate cos theta minus 1 minute. एक्स आर की वैल्यू क्या है? एक्स आर इज cos theta. cos theta X theta is minus r sin theta and sin theta yes. and minus r cos theta. Then plus derivative. Yeah, sorry, plus. Okay, that's fine, that's fine. So that gives you r into Cos square in bracket r into sin square. sin है square. ना? So It will be your 1. answer is r only. Correct? So 1 upon r. Very good. Yeah. Yes, yes. So your final answer is 1 upon r. This is your option. ठीक है, very good. Now, okay, 301 हो गया. 302. Yes, sir. Can you tell me this? 6. Yes, sir. डायरेक्ट मतलब कौन सा फॉर्म गिवन है? एक्सप्लिसिट गिवन है या इम्प्लिसिट गिवन है? Joker is direct. डायरेक्ट हो जाएगा. ओके ओके, बोलो आप. हाँ. एक्स का विद X रिस्पेक्ट to the U, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू v, y का V, U respect to U, Y respect to V. जस्ट टेल मी द डेरिवेटिव्स. E raised to V, हाँ, sec X into sec U into tan U. तो sec u का डेरिवेटिव क्या है? sec u into tan u. Into tan U. ओके, देन विद रिस्पेक्ट टू v. E raised to V, sec U. ओके, sec u. नाउ v with respect to u. E raised to V, sec square U. ओके, with respect to v. E raised to V, tan U. u. Okay. So I solve this. You will get e raised to 2v. 2V, Okay. sec U, tan square U. Sec u Tan square U. square u minus e raised to 2v 2V, sec sec u. square U. Okay. And what is this? क्या कॉमन आ सकता है? e raised to 2v कॉमन E आ raised to सकता है. 2V, And also you can take then sec U. हाँ, sec u common. So in bracket tan square minus sec square. What is that? Tan square minus 1. So your final answer is e raised to 2v sec. Sec. Okay. So yeah, D Sir, option. minus 1, I guess. Tan square U minus sec U, minus 1. That is minus 1. So this value is minus 1. Sec square minus tan square is 1. So I think Yes. e raised to minus e raised to 2v sec u कहाँ पे? ये है ना? Okay. Yes. Good. Yeah. So come to next now. अभी ये ट्रिवियल है. ये भी आई थिंक हो जाएगा. अभी ट्रिवियल है. ये भी ट्रिवियल है. ये क्या है? यू एंड वी. ओके, इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. ओके. हाँ, नाउ हु इज नेक्स्ट? रोल नंबर 3 आपका हुआ था. अगर आपका कंप्लीट हो गया ना, आप मुझे डायरेक्टली बोलो. रोल नंबर 3 303. सर हाँ, सर बताए सर ऊपर फर्स्ट वन. ओके. रोल नंबर 304. यस सर. हाँ. So सर एक मिनट. So I will read for you. If u and v be the implicit function of variable x and y, है ना? तो basically क्या given है? U and v are the functions of x and y, and here we have given the implicit function. Okay. f1 is your first function, f2 is the second function. आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट ने आपको फॉर्मूला बोलना है बस. जस्ट टेल मी द फॉर्मूला फॉर डैबा v by डैबा x इफ वी हैव दिस टू इम्प्लिसिट फंक्शन. तो यहाँ से मुझे पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला चाहिए. डैबा v by डैबा x. हैव यू क्रिएट दैट फॉर्मूला? एक लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि कैसे इसको याद रखना है. सो कैन यू टेल मी दिस? एक्स को कांस्टेंट नो, एक्स के अलावा सब कुछ 1 सेकेंड सर. So I will write for you. Okay. So it is comes in numerator and denominator in terms of numerator and denominator.
पहले मुझे आप ये बोलो कि यहाँ पे इसका जो साइन है डाबा वी बाई डाबा एक्स वो क्या है, प्लस है या माइनस है या क्या है, व्हाट इज दिस साइन हियर? पॉजिटिव, नो, नेगेटिव। सर मुझे सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इसके बारे में? मुझे इसके बारे में एक चीज समझ में नहीं आया था। बोलो ना। हाँ, सर यू एंड वी इम्प्लिसिट फंक्शन से वेरिएबल्स एक्स एंड वाई के, सो Correct. f2 में लाइक एक फंक्शन भी है, मतलब f1 इज अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन एंड एन इनपुट, लाइक वो मुझे समझ में नहीं आया था। इसका मीनिंग क्या है? आपके पास एक इक्वेशन है, इसका मीनिंग क्या है? आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें 4 वेरिएबल आ रहे हैं, u, v, x एंड y। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक दिस, ठीक है, कॉमा करके आपके पास एक और एक इक्वेशन है, ओके, विल हैव वन मोर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ दिस सेम 4 वेरिएबल्स, ओके, यू कैन टेक रैंडम, लेट्स से u प्लस v प्लस x क्यूब प्लस y क्यूब। So this information is given. We have these 2 equations. Okay, this we denote by f1, this we denote by f2. अभी यहाँ से आपको क्या करना है? यहाँ से आपको डाबा v by डाबा x कैलकुलेट करना है। ओके, अभी नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल, दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल। अगर मतलब जो आपका रेगुलर अप्रोच होता है पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का, ओके, अगर आपको उस अप्रोच से कैलकुलेट करना है डाबा v by डाबा x, तो क्या करना होगा? हाउ यू calculate the value of dabba v by dabba x with your usual approach? Can anyone tell me that? Like x के अलावा everything is a constant. नहीं, that is okay, but before that you must find one equation. अभी dabba v by dabba x कैलकुलेट करना है, किसको डिफरेंशिएट करोगे आप? जो आपका इक्वेशन है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का साइमल्टेनियस वो इक्वेशन है, तो आप किसको डिफरेंशिएट करोगे? प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? मुझे डाबा वी बाई डाबा एक्स कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना ही है, किसको करोगे? यू कांट डिफरेंशिएट इंडिविजुअली f1 एंड यू कांट डिफरेंशिएट इंडिविजुअली f2, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको कंसिडर करना है, दैट इज द प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये तो समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अगर मैं आपको ये देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक ही सिंगल इक्वेशन देता हूँ मैं आपको, और मैं आपको बोलता हूँ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, दिस f1, डिफरेंशिएट दिस f1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इजीली बोल सकते हो दैट विल बी 2x, अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे f1 भी ऊपर नहीं है, यहाँ पे v ऊपर है, तो ये मुझे यहाँ पे v आ रहा है और मुझे v को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, एंड फ्रॉम दिस 2 इक्वेशन। तो ये करने के लिए टू डू दिस आई नीड टू फाइंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, अभी इसकी जरूरत नहीं है, बट चलो जितने स्टूडेंट को समझ में आता है ठीक है। एक्चुअली जो आपका यूजुअल अप्रोच होता है ना यूनिट 1 में, जैसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके जाना, उस मेथड से करना है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? किस फॉर्म में आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा? कैन एनीवन? v x and y. v को आपको इन टर्म्स ऑफ x एंड y कैलकुलेट करना होगा, या सिंपली आपको v, x एंड y इन 3 वेरिएबल में इक्वेशन को कैलकुलेट करना होगा फ्रॉम दिस 2 इक्वेशन। या आपने कहाँ पे किया है पता है क्या? ये पार्ट आपने वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट में आपने ऑलरेडी किया है, ठीक है, वेरिएबल ट्रीटेड में आप जो करते हो वही लॉजिक है यहाँ पे। बट नाउ इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब इसमें भी क्या होता है कि आपको फिर देखना पड़ेगा कि हाउ यू एलिमिनेट दिस u, है ना, दोनों इक्वेशन से u को आपको एलिमिनेट करना है। बट कुछ केसेस में पॉसिबल होता है, कुछ केसेस में पॉसिबल नहीं होता। जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है वहाँ पे क्या आ जाता है? जैकोबियन आ जाता है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? या सिंपली अगर आपके पास 2 इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है, यू कैन यूज जैकोबियन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसे केसेस में आप किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके डाबा वी बाय डाबा एक्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि डाबा वी बाय डाबा एक्स तभी कैलकुलेट होगा जब आपके पास v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y आ जाएगी, तभी आप डाबा वी बाय डाबा एक्स कैलकुलेट कर सकते हो। बट हियर वी डोंट हैव दैट रिलेशन, v in terms of x and y. It means we have to use Jacobian concept to calculate this partial derivative. Is this clear? इसमें अभी कुछ डाउट्स है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ ये तो समझ में आ रहा है सबको? नहीं तो क्या होगा कि इन दोनों यूनिट में कंफ्यूजन होगा कि यार कहाँ पे जैकोबियन आता है, कहाँ पे रेगुलर अप्रोच से जाना है। इज दिस क्लियर नाउ? ओके, अगर आपके पास 2 इक्वेशन आ जाते हैं ना, एट द एंड अगर आपके पास 2 इक्वेशन आ जाते हैं ना, आपको जैकोबियन मेथड से पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इतना ही मैंने एक्सप्लेन किया। यस, अदर स्टूडेंट कुछ डाउट्स है तो आप बोलो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको ये क्लियर हुआ है कि नहीं। इज दिस क्लियर?
मैंने दो चीजें एक्सप्लेन की है. Yes, sir. वी हैव टू गो विद जैकोबियन, दैट आल्सो आई एक्सप्लेन. ओके, आई डोंट नो कितने स्टूडेंट को वो समझ में आ रहा है कि व्हाई वी हैव टू गो विद जैकोबियन, क्योंकि यहाँ पे v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, सो वी हैव टू गो विद द जैकोबियन ओनली. ओके, हाँ, सो ओके नाउ या सिंपली अगर आपको ये मैथमेटिकली नहीं समझ में आता है, जस्ट रिमेंबर अगर आपके पास दो ऐसे फंक्शन आ जाते हैं, वन इक्वेशन कॉमा करके सेकंड इक्वेशन, एंड अगर आपको किसी पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यूज जैकोबियन. ठीक है, दैट्स इट. ओके, नाउ सो इन दिस फॉर्मूला, ओके 304 मैं आपके लिए फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यस सर. ऐसे केसेस में सारे फॉर्मूलेज में माइनस साइन कंपलसरी है. ठीक है, अभी आप देखो ट्रिक क्या है. फर्स्ट राइट डाउन द डिनोमिनेटर. ओके, सो डिनोमिनेटर क्या होता है, जैकोबियन ऑफ f1 f2 विद रिस्पेक्ट टू जो आपका न्यूमरेटर का वेरिएबल है ना. ओके, जस्ट चेक वो न्यूमरेटर का वेरिएबल कौन से सेट में जाएगा. ये कौन से सेट में जाएगा, u कॉमा v के सेट में जाएगा. एम आई करेक्ट? v वेरिएबल Yes. आपका कौन से सेट में जाएगा, u कॉमा v के सेट में जाएगा, एंड x वेरिएबल आपका कौन से सेट में जाएगा, x कॉमा y के सेट में जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर का वेरिएबल है वो कौन से सेट में जा रहा है, u एंड v के सेट में जा रहा है, तो वो नीचे आएगा. तो बस ये दिखना है, ये देखना है आपको कि न्यूमरेटर का वेरिएबल कौन से सेट में जा रहा है. अगर यहाँ पे ऊपर x आ जाता ना तो नीचे x एंड y आ जाता. अगर यहाँ पे ऊपर u आ जाता तो नीचे u एंड v आ जाता. ठीक है, नाउ ओके, ये सेम टर्म आपको एज इट इज यू हैव टू कीप इट ऑन न्यूमरेटर. उसमें क्या चेंज करना है, ऊपर v है नीचे x है, तो इसमें क्या चेंज करना है, रिप्लेस v बाय x. सो राइट डाउन दिस सेम पार्ट एज इट इज, जस्ट रिप्लेस v बाय x. This is the formula. Is this clear now? 304. Yes sir. हाँ. Like but okay. हाँ, okay, okay. I will give you one more example. मुझे पता है. So let me give the one more example. I will change this. Yeah. जब तक नहीं समझ में आता तब तक हम आगे नहीं जाएंगे. Don't worry. Let me give you this. Dabba y upon dabba u. अभी आप बोलो. अब ट्राई करो. ओके, मुझे आपसे मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप 100% मतलब करेक्ट आंसर दोगे हमेशा. ओके, रॉन्ग भी आता तो आने दो. सारे क्वेश्चन में सारे फॉर्मूलेज में माइनस साइन आता है. ओके, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया. हाँ, अभी मुझे पहले आप ये बोलो कि व्हाट इज इन द डिनोमिनेटर, जैकोबियन ऑफ f1 f2 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट. दोनों केसेस में जैकोबियन ऑफ f1 f2 आता है, बस नीचे का पार्ट चेंज होता है. तो यहाँ पे नीचे क्या लेना है, मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन किया था. नीचे कौन सा सेट आएगा, a set where numerator variable is present. तो कौन से सेट में आपका y प्रेजेंट है, X and Y का. नीचे क्या आएगा, x एंड y. ऊपर क्या लिखना है, सेम ऊपर कॉपी करना है. क्या चेंज करना है उसमें, क्या चेंज करना है, इससे समझ चेंज कहाँ पे करना है. डैबा y बाय डैबा u की वजह से क्या चेंज मिलेगा, ऊपर क्या था y चेंज टू, नीचे क्या है u, तो y किससे चेंज होगा, u से. तो नीचे क्या होगा, जो आपका y वेरिएबल है वो चेंज होगा u से. इज इट क्लियर नाउ? Yes sir. ओके, एक और बार मैं आपसे पूछता हूँ, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी आपको इसका आंसर देना है. नेक्स्ट इज डैबा x अपॉन डैबा v. नाउ यू टेल मी. जो सबसे पहले लिखा था उसे इन्वर्स कर देना. ओके, सबसे पहले डैबा f1 कॉमा f2 डिवाइडेड बाय डैबा u कॉमा v. नीचे क्या आएगा, x कॉमा y सॉरी. और फिर न्यूमरेटर में डैबा f1 f2 डिवाइडेड बाय डैबा u कॉमा v. या तो u कॉमा v. One second. मैंने क्या बोला था, इसको एज इट इज ऊपर कॉपी करना है, बस क्या Yes, sir. चेंज होगा. ये क्या कहता है, लाइक v वेरिएबल चेंज होगा. जो चेंज होता है ना वो इस पे डिपेंड है. यहाँ पे ऊपर कौन सा वेरिएबल है, x x है. x चेंज टू नीचे का वेरिएबल क्या है वो v. तो क्या चेंज करना है मुझे, ये एज इट इज ऊपर आएगा, बट जहाँ पे x था उसके जगह पे बस क्या लिखना है, v कॉमा y. हाँ ठीक है, ये याद रखो क्योंकि ये इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं. एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे. ठीक है, सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ये एक ट्रिक है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है इसके पीछे. दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ओके, इज इट क्लियर नाउ? 304. Yes sir. Okay,
आगे क्वेश्चन आ जाता तो मैं आपको पूछ लूँगा फिर से. सो डाबा वी बाय डाबा एक्स. अभी आप बोलो कौन सा ऑप्शन मुझे टिक करना है. Java V by Java X. 1 second. आप बोलो. ओके इसके नीचे यू भी आता है तो कैन वी टिक दिस. सॉरी ओके कैन वी टिक दिस. सॉरी डी ऑप्शन देखो इसके नीचे एक्स वाई आता है. कैन वी टिक दिस. Yes sir. कभी नहीं क्योंकि ऊपर का जो वेरिएबल है ना रिवर्स होता है. ये हमेशा रिवर्स होता है. ऊपर का वेरिएबल नीचे आता है. वी ऊपर है तो नीचे यू भी आ जाएगा. ऐसा याद रखो. तो अभी Sir, C option. हाँ और क्या करना है इसमें यू वी के जगह पे एक्स आना चाहिए. तो वी के जगह पे एक्स यही पे आ रहा है. सो सी ऑप्शन. ओके ठीक है. आई थिंक 50-60% तो आपको समझ में आ चुका है. ओके देन नेक्स्ट इज आई थिंक 305 हुआ है शायद बट स्टिल यू कैन कंफर्म. 305. Yes, sir. Last time हुआ है. ओके 306. Yes sir. Okay. Now you tell me this. We have given these two values and just calculate the value of dabba u by dabba x. मुझे फॉर्मूला बोलो. Java U by Java X. फॉर्मूला बोलो. F1 F2 X. फॉर्मूला कैसे आइडेंटिफाई करना है. ये जो गिवन है ना बेस ऑन दैट यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला. हाँ By U by Java X का माइनस साइन हमेशा आता है. माइनस नीचे क्या आना चाहिए. F1 F2 upon हाँ X X U comma V वेरी गुड. ऊपर क्या आएगा. सेम. and ऊपर U की जगह X. वेरी गुड. F1 F2 Y X comma V. वेरी गुड. ओके अभी देखो क्या 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 वैल्यूज है इसके. तो एक्स वी की वैल्यू क्या है. एक्स वी की 2x + 1. सो माइनस इंटू 2x 2x plus नीचे क्या है माइनस. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट. बी ना. B 2x plus Y 2 B option. ओके ओके समझ में आ रहा है आपको. 306. इज दिस क्लियर क्वेश्चन. Yes sir. ओके नेक्स्ट 307 हो गया. तो आप मुझे बस कंफर्म करके Yes, sir. या 307 हो चुका है ना. 307 टेल मी यस और नो. Yes, sir. Present, sir. आपका हुआ था क्या लास्ट इसमें. लास्ट लेक्चर में आप का ये हुआ था कि नहीं. दिस एक्सप्रेशन. आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर. 307. Yes, sir. Present, sir. यहीं पे हूँ. हाँ आपने एक मतलब लास्ट टाइम आपका रोल नंबर मैंने नोट डाउन किया था कि नहीं. नहीं सर नहीं किया था सर. ओके हाँ सी अगर आपका लास्ट ट्यूटोरियल में कि अगर आपका रोल नंबर इस शीट में नोट डाउन किया है सो इन टुडेज सेशन आपको आंसर नहीं देना है. अदर स्टूडेंट्स विल आंसर फर्स्ट एंड देन विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम रोल नंबर 1 या लास्ट रोल नंबर. ठीक है. तो शायद मैंने लास्ट टाइम रैंडमली स्टार्ट किया था उसकी वजह से अभी मुझे परफेक्ट याद नहीं कि कितने स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था और कितने स्टूडेंट का पेंडिंग है. ठीक है. तो अगर आपने कंप्लीट किया है तो जस्ट मुझे रिप्लाई करके बोलो सर आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. ठीक है. सो दैट मैं आई कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टूडेंट. ओके नाउ 307 या नाउ कैन यू टेल मी दिस. डाबा Yes, sir. सर पहले माइनस साइन. हाँ ओके व्हाट इज इन द डिनोमिनेटर. सर डाबा F1 F2 हाँ upon डाबा R थीटा. वेरी गुड. ऊपर जैकोबियन ऑफ F1 F2 एंड जैकोबियन ऑफ X थीटा. वेरी गुड. ठीक है. सो विच ऑप्शन X इज थीटा. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो क्या मिलेगा ये माइनस F1 F2 X थीटा इज माइनस सॉरी माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा प्लस R साइन थीटा. नीचे क्या है F1 F2 R थीटा दैट इज R. ये X कहाँ से आया ये X.
कुछ तो मिस्टेक लग रही है ना, अगर उनको ठीक है, ये जो भी आ रहा है दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, इनके कुछ ऑप्शंस में प्रॉब्लम है। हाँ सर। हाँ, बिकॉज दे हैव नॉट गिवन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो फिर ठीक है, ओके, लेट इट बी, सम मिस्टेक्स इज देयर, बट ठीक है, योर अप्रोच इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 308। Yes, sir. Can you tell me this now? I will read. Sir, 0. Two function u and v are functionally dependent if their Jacobian is 0. Okay. And if these two functions are dependent, then what? Then what? Dependent का meaning क्या होता है? Functionally dependent आ जाते हैं, तो उनका meaning क्या होता है? Yes. Say that these two values, these two functions u and v are functionally dependent, means what? Means what you understand from this? There's some relation between them. Very good. Okay, तो इसका मतलब क्या कि there exists some relation between them. Okay, and now 14 is actually अभी जो आपने आंसर दिया उसका ही मतलब उसी रिलेटेड एक क्वेश्चन है। Here we have given u, here we have given v, and are the functionally dependent, then the relation between u and v. ओके, ये आपको मैंने बोला था कैसे कैलकुलेट करना है। तो v इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एंड दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ u। ठीक है, सो योर रिलेशन इज tan v इज इक्वल टू u। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ये हो चुका है थ्योरी में, यू कैन रेफर दैट अगेन। ओके, Yes, sir. नाउ 309। हुआ था सर लास्ट टाइम। ओके, ठीक है, 310 310 310 इज absent का। ओके, 311 सर हुआ था लास्ट टाइम। 312 312 12 रोल नंबर। टोकन ऑफ सेंट्रल। There is no control, okay, because of this ये चीजें हो रही है। 13 का एब्सेंट है सर। वाई द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट? अगर आपके कांटेक्ट में तो आप इनको कॉल करो। सी एट देन यू हैव टू मेंटेन दिस 100% अटेंडेंस फॉर प्रैक्टिकल। सो देर आर टोटल 28 स्टूडेंट्स। इफ यू absent फॉर एनी सिंगल ट्यूटोरियल ना, ओके, आई विल नॉट अलाउ यू फॉर अ सबमिशन। ओके, ये डिफिकल्टी आपको लास्ट में आ जाएगी। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट योर अटेंडेंस। तो जो भी चीज़ें आप अभी कर रहे हो ना, दैट विल 100% अफेक्ट यू एट द एंड ऑफ योर एग्जाम। इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड दैट लेक्चर, आप कैसे भी कन्वे करो, फैकल्टी को कन्वे करो, क्लास टीचर को कन्वे करो, ये नहीं है वो मैसेज मेरे पास आना चाहिए। अदरवाइज जैसे आपका प्रोग्रेस होगा वैसे मैं आपको ट्रीट करूंगा। समवन प्लीज कॉल देम, एनीवन फ्रॉम आवर बैच, कॉल देम। अगर कुछ रीजन है तो मुझे व्हाट्सअप करने के लिए बोलो। और आपको मैंने पहले क्लियर किया, तो दिस एब्सेंट स्टूडेंट, ओके, ये आज के ट्यूट के और इस पूरे वीक के जो एब्सेंट स्टूडेंट्स है, आई विल पर्सनली अरेंज वन मीटिंग विद देम, ओके, एंड विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि मुझे एब्सेंटी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको नहीं करना है, अगर आपको लग रहा है कहीं पे आपका इसमें लॉस हो रहा है, सो नो नीड टू अटेंड दिस लेक्चर। आपको मैंने पहले ही क्लियर किया है। आपका अगर आपको फील होता है कि इसमें आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, आप अटेंड मत करो। अगर आपको लग रहा है इसमें कहीं पे आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आप तो एटलीस्ट आपको अटेंड करना होगा। अगर आप नहीं करते हो फिर भी, देन इन दैट केस फिर मुझे कुछ करना होगा। सो प्लीज डोंट डू दैट। ये इरेगुलर थिंग, आई रियली डोंट लाइक दिस। ओके, हाँ, सो समवन प्लीज कॉल द स्टूडेंट्स एंड टेल देम टू ज्वाइन इमीडिएटली। ओके, नेक्स्ट रोल नंबर 14। Yes, sir. Sir, आपका हुआ? नहीं सर। हाँ, बोलो। Sir, we have to find Jacobian and we have to equate it to 0. Okay. Now
my question is what? Here u is function of how many variable? U is function of how many variable? 3 variables, sir. X, Y, Z. Good. V is function of 3 variable again X, Y, Z. Okay. Yes. How you check? पहले ये बोलो मैं. How you check whether these two functions are functionally dependent or not? कैसे आप चेक करोगे? How you check whether these two functions are functionally dependent? ये in general पूछा है ना. This is not this example. अगर आपको चेक ही करना है कि ये दोनों डिपेंडेंट है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे? व्हाट इज द डेफिनेशन यूजिंग जैकोबियन? क्या करना होगा आपको इसमें? बोलो. सर हाँ, पहले जैकोबियन ऑफ यूवी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई फाइंड करना पड़ेगा, ओके, गुड. हाँ, एंड देन इक्वल टू. ठीक है. अगर वो जीरो आता है, नॉन जीरो आता है, दैट इज फाइन. ठीक है. इज दिस सफिशिएंट? इज दिस सफिशिएंट? No, then again Jacobian of UV with respect to YZ, वेरी गुड. एंड देन and then यूवी. Jacobian of UV with respect to XZ. वेरी गुड. तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ये तीनों वैल्यू चेक करने. If all these three values are zero, then only we can say that these two functions are functionally dependent. अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू नॉन जीरो आती है ना, तो आपका आंसर क्या होगा? दैट विल बी फंक्शनली इंडिपेंडेंट. ठीक है. ओके. एंड नाउ यू हैव टू जस्ट फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम. ठीक है. ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस वैसे ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल किया है किसी ने वर्कआउट? व्हाट इज दिस रिलेशन? रैंडम में ट्राई करना होगा. u प्लस 1/v का उन्होंने थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन लिया है ना, तो x माइनस वाई. अभी इसमें कोई मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है, सो आई विल नॉट. ये क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि x प्लस जेड आपका बेस इक्वल हो जाएगा. सो लेट जस्ट रिवर्स दी v. ठीक है. सो y प्लस जेड अपॉन x प्लस जेड, एंड विल चेक व्हाट इज दिस. सो दैट गिव्स मी x प्लस जेड इन द डिनोमिनेटर, एंड इन न्यूमरेटर विल गेट x प्लस जेड. अरे हो गया. दैट इज 1. सो व्हाट इज योर रिलेशन? क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन मिल रहा है? u प्लस 1/v इक्वल टू 1. आप चेक करो ये. ठीक है. u Yes, sir. प्लस v को रिवर्स करो, 1/v के फॉर्म में लिखो, ऐड करो, आपको एट देन 1 मिल जाएगा. ठीक है. सो सी फॉर दिस Yes. नो पर्टिकुलर मैथमेटिक्स और नो पर्टिकुलर अप्रोच टू एक्सप्लेन दिस रिलेशन. ये शायद आपको मैंने बोला भी था. ठीक है. रैंडमली आउट आणि इन केस ऑफ MCQs इट बिकम ईजी, क्योंकि 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई तो एक रिलेशन मिलने वाला है. ठीक है. तो आप देखो कि या तो आपको चारों चेक करने होंगे, ओके, या तो अगर आपका लक अच्छा है तो किसी एक से आपको क्विकली मिल जाएगा. बट देयर इज नो एनी लॉजिक, एनी पर्टिकुलर अप्रोच टू फाइंड दिस रिलेशन. इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, कि आप उसको कैसे देखते हो. ठीक है. ओके, वेरी गुड. नाउ Yes, sir. 315, हो गया था सर. 316. सर 316 में आपको मैसेज करने को बोला था, देने को बोला था कि ही इज हैविंग सम नेटवर्क इशू. मतलब ही वाज जॉइन टिल नाउ, बट अभी उसके एरिया की लाइट गई है, तो ही विल रीजॉइन एज सून एज इट. उनको आप मैसेज करके रखो कि अभी तक चल रहा है, क्लास में भी आके आंसर दे सकते हो तो भी चलेगा. ठीक है. यस. ओके, नाउ विल मूव टू दी 17 हो गया. 18 डायरेक्टली. ओके. सो 318. ओके. या आई थिंक आज का ये टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा का. z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई विद द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y. एफ ऑफ एक्स वाई हैज अ मैक्सिमम एट ए बी. क्या कंडीशन है? बोलो. 318 प्रेजेंट है क्या? यस. 318 एब्सेंट ही लग रहा है मुझे. ओके. 319 का शायद हो गया हुआ, मतलब 319 हैव यू कंप्लीटेड? Yes, sir. Last time complete. ओके. 320 इतने स्टूडेंट एब्सेंट क्यों है? ओके.
320 is also absent. They have to attend this tutorial. मतलब ये 1 hour तो उनको देना ही होगा. 19 का हो गया है. 21. डन सर. लास्ट Okay, लेक्चर. 22. लास्ट टाइम झालेलं सर. 23. 24. सर हुआ था लास्ट टाइम. 25. ये सर झाले. 26. झाले सर. 27. 27. झाले सर. 28. झाले. 29. झाले. 30. 30. प्रेजेंट क्या पहले वो बोला था. सर सॉरी का हो गया था सर. हो गया था ना. 30 का हो गया था कंफर्म. ओके. 31. हाँ सर. 32. 32 लास्ट है ना. हाँ सर. ओके ठीक है. तो आई थिंक अभी मैं एज्यूम करता हूँ जैसे कि एक्सेप्ट दिस स्टूडेंट्स शायद सबका इनका भी शायद हो गया होगा. आई डोंट नो. ओके बट आई विल चेक दैट PDF फाइल. इट इज़ देयर. सो एक्सेप्ट दिस सबका फर्स्ट इंटरेक्शन कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. ओके एंड नाउ विल डिस्कस रैंडमली. ओके नाउ इट्स ओपन क्वेश्चन. एवरीवन हैज टू डिस्कस क्विकली so that you can complete maximum number of question. बोलो. Now 16. Z equal to f of x y be a function of two independent variable x and y. When you get a maximum value, yes. ऑप्शन ए सर. ऑप्शन ओके. तो इसमें याद रखो पॉजिटिव के केस में ही मैक्सिमा मिनिमा मिलता है. यस एंड आफ्टर दैट द मैक्सिमा मिनिमा इज डिपेंड ऑन द साइन ऑफ r. इफ इट इज पॉजिटिव मिनिमा, इफ इट इज नेगेटिव मैक्सिमा. ओके नेक्स्ट. या तो सेम क्वेश्चन इज देयर. आई विल नॉट go in detail. Yeah, so dab f by dab x is given, dab f by dab y is given, then the stationary points of x and y. तो क्या करना होगा? we have to equate this to 0. so 3x square ये शायद लिया है ना, आज ही हो गया ये, equal to 0, 3y square minus 3x is equal to 0. ये आज ही आपने कैलकुलेट किया है ना. so which option is correct? यस. C. हाँ सी सर. और शायद PPT में आप देखो कि कुछ करेक्शन है तो आप मुझे बोलो. ठीक है. मैं नहीं चेक करता हूँ ज़्यादा कुछ, तो आप बोलो. ओके नेक्स्ट 19. हाँ अप्रोच बोलो. 19 को कैसे करोगे? 19 आपको x एंड y टर्म्स उल्टा कर दो. रेसिप्रोकल. हाँ हाँ रिवर्स करेंगे. 1 upon xy with respect to u. Okay, so after that you can do it. It's not difficult. यहाँ पे भी क्या करना है? रिवर्स से कैलकुलेट करो बिकॉज दैट सेव्स योर टाइम. यहाँ पे आप रिलेशन कैलकुलेट करके भी जा सकते हो. ओके उससे भी आंसर मिलने वाला है. बट MCQs में ना आपको J डैश की डेफिनेशन का यूज़ करके ही जाना है. मतलब एक्स वाई गिवन है इन टर्म्स ऑफ UV, और अगर आपको UV इन टर्म्स ऑफ XY कैलकुलेट करना है तो यूज़ रिवर्स डेफिनेशन 1 जैकोबियन ऑफ XY विद रिस्पेक्ट टू UV. ठीक है. यही सबसे फास्ट अप्रोच रहेगा आपको एग्जाम में. ठीक है. अभी सेम टाइप के क्वेश्चन है, सो दैट आई विल स्किप. सेम या कम टू दिस नाउ. द जैकोबियन ऑफ PQR, ओके दिस 3 वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू XYZ इज गिवन बाय. तो इन तीनों का आपको चाहिए. बोलो जैकोबियन ऑफ. उन्होंने बोला कि कौन सा कैलकुलेट करना है. उन्होंने क्या बोला है? PQR का कैलकुलेट करो. जैकोबियन ऑफ PQR विद रिस्पेक्ट टू XYZ. डेफिनेशन बोलो. डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन क्या होगी? P to the x, P to the y, P to the z. To the In matrix. Yeah, so here we have given the explicit form. Already आपके पास P in terms of x y z है, Q भी in terms of x y z. आप बोलोगे x नहीं है, तो that you can write as 0 times x, है ना. And also R is defined in terms of x y z. So ये already आपके पास explicit form है, तो आपको बस करना क्या है? Differentiate P with respect to x, P with respect to y, P with respect to z, Q with respect to x, Q with respect to y, Q with respect to z, and R with respect to x, R with respect to y, and R with respect to z. ठीक है. ओके जस्ट कैलकुलेट. क्या आ रहा है आंसर इसका? 1. ओके कुछ तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में जाएगा शायद. ओके नाउ नेक्स्ट 26. UV का विद रिस्पेक्ट टू XY स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट डिटरमिनेंट से हो जाएगा. UV का विद रिस्पेक्ट टू XY डायरेक्ट हो जाएगा. आई थिंक कुछ तो रिपीटेशन में आ रहा है क्वेश्चन. UV का विद रिस्पेक्ट टू XY डायरेक्ट हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा,
ये भी ट्रिवियल है। आपको बात भी समझ में आ रहा है कितने सारे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। अगेन दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कैन यू टेल मी अगेन विच ऑप्शन इज करेक्ट। डाबा यू बाय डाबा एक्स, तो पहले ऊपर का वेरिएबल फोकस करो, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो कभी नहीं आया, सी बी डब्ल्यू चाहिए, C. यू के जगह पे एक्स ऊपर चाहिए, मिल रहा है, एंड माइनस साइन, ओके, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। ये भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सारी चीज़ें रेडीमेड है आपके पास, ठीक है, आपको बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। दिस इज ऑल्सो रेडीमेड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसके मतलब इम्पोर्टेंस यहाँ पे इक्वल टू 1 है, सॉरी, हाँ। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर एक्स है तो नीचे एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स की जगह पे यू ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक क्या आंसर आएगा इसका, आंसर क्या आएगा, हाँ, व्हाट इज आंसर ऑफ -1। 1 गलती से भी टिक मत करो क्योंकि वो माइनस -1. -1, ठीक है। आई थिंक या सो इट इज़ ऑल्सो ओवर। कुछ क्वेश्चन रिपीटेशन में, सो आई विल स्किप दोज क्वेश्चंस। अब इसमें थोड़ा टाइम आपको, विच रिलेशन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 36। अब ये ऑप्शन देख के करना होगा, मुझे नहीं लग रहा कोई और अदर ट्रिक होगी। यस, विच रिलेशन इज करेक्ट, किसने किया है, यू का स्क्वायर करते तो बेस सेम हो जाएगा, है ना, और फिर ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है, दैट यू कैन डिसाइड। बोलो, ओके, तो ये देखना ही होगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको ऐसे ही करके जाना होगा। किसी ने ट्राई किया तो आप मुझे बोलो, ठीक है। फंक्शंस, हाँ, नाउ टेल मी दिस 37, ठीक है। u इक्वल टू 3x प्लस 9y, v इक्वल टू x प्लस 3y, आर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, हाउ यू डू दिस, हाउ यू डू दिस, कैसे करोगे ये, हाँ, कैसे करोगे, हाँ, U is equal to 3. जाता है ना, आप काम ही हो गया ना, u इक्वल टू 3v, तो इट इज फंक्शनली डिपेंडेंस, नो नीड टू कैलकुलेट जैकोबियन आल्सो, कैलकुलेट कर भी लेते हो तो वो 0 ही आने वाला है, ठीक है। सेम फॉर 38, बोलो 38, Dependent is equal to 2. U is equal to 2v. V is equal to 2. v is equal to u, it is also dependent, ठीक है। नेक्स्ट j is नॉन जीरो, देन u and v are ओके इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये भी ट्रिवियल है। फंक्शंस आर, हाँ, ऐसे केसेस में चेक करना होगा, डायरेक्ट रिलेशन अगर नहीं मिलता है, बट बोलो, आप बोलो क्या है। तो इस केस में हम चेक ही करते हैं, u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो u का विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, u का विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, v का विद रिस्पेक्ट टू x इज 2, विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, एंड योर डिटर्मिनेंट इज -1 -2, दैट विल बी -3, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी, इंडिपेंडेंट है। देख के भी समझ में आ रहा था, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दिस टू फंक्शंस, सो दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ये क्लियरली समझ में आ गया 40 नंबर का क्वेश्चन। Yes, sir. सिंपल क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ये सारे फॉर्मूला बेस है। क्या चाहिए, मैक्सिमा, क्या कंडीशन है, पॉजिटिव या निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है, हाँ, मिनिमा, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव, है ना। देन क्या है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल आर टी माइनस ए स्क्वायर 0, दिस केस इज अनडिसाइडेड, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है उन्होंने दिया है आर टी माइनस स्क्वायर इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, ठीक है, आर इक्वल टू दिस एट, देन एट 0 0, तो आप कैलकुलेट करो एट 0 0, आर टी माइनस स्क्वायर एट 0 0 क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 डालो, y इक्वल टू 0 डालो, क्या मिलेगा, 0 - 1 का स्क्वायर इज 1 -0, सो 36 इज पॉजिटिव, r इज इक्वल टू x इज 0 -6 इज निगेटिव, 0 0 पॉइंट पे है, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, Maximum. Maximum. ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन है, पॉइंट अलग अलग देके उन्होंने दे हैव क्रिएटेड दिस क्वेश्चंस, कैन रेफर दिस, ओके, या हाँ,
टेल मी दिस. हाँ बोलो अभी इसमें नोटेशन बस अलग अलग है बट यू कैन विच इज माई आर विच इज माई एस विच इज माई टी. fx r. Yes. आर टी माइनस एस स्क्वायर इज 2 माइनस 1 विच इज पॉजिटिव है ना एंड आर इज ऑल्सो पॉजिटिव सो Minimum. मिनिमम एट दैट पॉइंट. minimum. इसके भी स्टेशनरी पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं. ठीक है सो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इज इक्वल टू 0. जस्ट लेट मी राइट दिस 4x प्लस 6y इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 6y इक्वल टू 0. सो दैट गिव्स मी x इज इक्वल टू y हियर और यहाँ पे डाल देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बोथ आर इक्वल देन 10y इज इक्वल टू 0 दैट इज y इक्वल टू 0. सो विच पॉइंट इज देयर बोलो 0 0. ये आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो. आप डायरेक्टली आप यहीं पे पुट करके देखो ना x0 y0 सेटिस्फाई कर x0 y0 सेटिस्फाई कर मतलब यही होगा. Point which satisfies these two equation that become your stationary point. It become more simple. No need to calculate also. A point which satisfies these two equation that become your stationary point. ये भी कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है सिमिलर है सिमिलर है सिमिलर है. So I think yeah. The percentage error in area of rectangle. बोलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है पहले वो बोलो मुझे क्विकली. एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल Length into breadth. सो ए बी. ठीक है एंड क्या गिवन है द परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन एन एरर ऑफ 1% इज मेड इन मेजर ऑफ इज लेंथ एंड ब्रेड. ठीक है तो मैं उस नोटेशन में रख देता हूँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड. तो क्या करना होगा बोलो क्या करना होगा. Log linear. L by L in 100 is equal to 1. So this become log b differentiating. So you will get 1 by a log का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय a. आप 100 से भी मल्टीप्लाई करके रखो विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग l इज 1 बाय l. l का डेरिवेटिव l और मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सेम 1 बाय b डेरिवेटिव ऑफ b मल्टीप्लाई बाय 100. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट. 2%. इतना भी करने की जरूरत नहीं आपको ओरली समझ में आ जाता है. हाँ बोलो ये क्या है. डी एक्स डिवाइड डी जेड आर कॉल्ड एज Actual error. error, not relative error, not percentage error, actual error. There is one more word, absolute error. Absolute error. Relative error, A option है ना, dx upon x. This is called as percentage error. Area of rectangle is 1%. अब ये सेम है, रिपीट है. यहाँ पे पाई ए बी ओरली बोल सकते हो. इसका आंसर क्या है. 2 and 3% दिया है. ए में 2 या बी में 3. विच ऑप्शन इज करेक्ट. पाई मतलब आपको पता है कि वो सारे एडिशन. हाँ इसका भी आंसर बोल सकते हो आप. सेम ही रहता है, इसमें चेंज नहीं होती वैल्यू. क्योंकि क्या हो जाता है वो आगे के सारे इसमें 0.2 कॉमन आने, सॉरी 2% कॉमन आने वाला है. एंड जो 1/r एक्स्ट्रा जो मिल रहा था ना लेफ्ट साइड से वो इससे कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 2. आप चेक करिए, मैंने लिया है प्रॉब्लम थियरी में, सो आपको उससे समझ में आ जाएगा. ठीक है तो यू विल गेट दिस सेम वैल्यू. सेम ही मिलता है यहाँ पे भी, सेम ही मिलता है. ये जो एडिशन के 2 क्वेश्चन है ना, फिर भी आप एक बार चेक करो, ये सेम ही देता है आंसर आपको 3 जो कि मैंने वही एरर आ जाती है. एंड फॉर अ रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन ट्राई. ठीक है कैन यू टेल मी दिस 68 क्विकली बोलो. 68 का बोलो. ये r² है तो क्या चेंज होगा आप करके मुझे बोल दो. Option D. 4 ऑप्शन Option D. D sir 4. एंड इसमें 69 क्या है. वॉल्यूम हाँ r² इट इज गिवन. टेकिंग लॉग एंड 5. Option A 5. 85 sir.
1, इसमें भी लॉग ले लो, वो सब्ट्रैक्शन है ना, हो जाएगा। सो log p इज इक्वल टू log e स्क्वायर माइनस log r, है ना। 8 आ रहा है क्या? यस सर। ओके ठीक है, तो मैं मतलब ठीक है आपके लिए छोड़ देता हूँ कुछ क्वेश्चंस। या ये लेना चाहिए था शायद, ये मैंने नहीं लिया है। ओके कितने रह गए, लेट मी चेक सो दैट आई कैन मैनेज द टाइम। हाँ ये तो हो गए सारे। या सो आई थिंक डन। सो या ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये ऐड करना चाहिए था। ओके सो let us just do this last question and then we'll stop. If the kinetic energy is given by this formula, okay, and m changes from 49 to 49.5, m changes from 49 to 49.5, so what is the error present in m? 0.5. 0.5. You can just subtract this, ठीक है। so v changes from 1600 to 1590, so what is the error present in v? -10. -10। लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, ये आपको करना है, ठीक है। और क्या चाहिए आपको? अप्रोक्सीमेट चेंज इन टी, आई थिंक dt चाहिए। अप्रोक्सीमेट चेंज इन टी मतलब dt, ठीक है। सो इफ t इज इक्वल टू, जस्ट 1 मिनट, इफ t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। तो dt क्या आ जाएगा बोलो, एनीवन? dt क्या आ जाएगा? Pm plus -P. 1/2 तो कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर आने वाला है, आज 1/2 इज अ कांस्टेंट। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका? यूवी का रूल जाएगा ना, है ना। सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, बोलो, प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, हो गया, ठीक है। हाँ अभी यहाँ पे आपको बस क्या चाहिए? व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ m एंड व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ v? 49 है ना, क्योंकि 49 से तो चेंज हो रहा है, मतलब 49 इज द ओरिजिनल वैल्यू, और यहाँ पे 1600 इज द ओरिजिनल वैल्यू। सारी चीज़ें यहाँ पे है, m की वैल्यू, dm की वैल्यू, dv की वैल्यू, v की वैल्यू, इसमें पुट करो। कैन एनीवन डू दिस क्विकली एंड टेल मी द फाइनल आंसर? इस क्वेश्चन में कहीं पे तो कुछ मिस्टेक थी, मुझे याद नहीं है, बट लेट अस डू इट। आप करो और मुझे आंसर बोलो, देन विल स्टॉप। You can put your roll number in chat box for the attendance also. Someone please do it for me and tell me the final answer. आई गॉट दिस, मैंने भी किया है, आप चेक करो इज दिस करेक्ट और नॉट। Yes sir, CI. ओके -144,000, ठीक है। सो मतलब आपको अभी ओवरऑल आइडिया आ चुकी है यूनिट 2 में क्या क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड देखो आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। या सो दिस पार्ट इज नॉट देयर आई थिंक इन योर सिलेबस, यू कैन स्किप दिस, इट इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। ये आई थिंक 79B लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड इज नॉट देयर, ओके, यू कैन स्किप दिस, बट यहाँ तक तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ओके। चलिए क्वेश्चन आप देने वाले हो। अब ये शेयर करना ना डिफ़िकल्ट है, ओके, आई कैन नॉट शेयर ऑफिशियली एनीथिंग ना, ठीक है। तो अभी कैसे दे सकते हैं आप बोलो मुझे बाद में। सर यूट्यूबच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकायची, आमचा मी घेतो करून। आपने तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ठीक है। सो आई डोंट एक्चुअली आई वांट टू शेयर दिस, हाँ